व्हीटस्टोन ब्रिज। आज व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम सीखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन एक ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने एक ब्रिज बनाया 4 रेजिस्टर्स को एक क्वाड्रिलेटरल में लगाकर। आइए देखते हैं ये क्या है और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। So as you can see, for Wheatstone bridge it is consisting of 4 resistors, 1 galvanometer, 1 cell or battery, and many more terms will come, is called a Wheatstone bridge. Basically 4 resistors we will use, a galvanometer we will use, and 2 keys also basically we use. One key is this one, key 1, K key 1, and this is K key 2, connected in one diagonal of this quadrilateral BD. This key, special name of this key is known as jockey. Actually it slides over the wire, so complete name is slider jockey. We will see when we will do the application of Wheatstone bridge, that would be meter bridge. उसमें हम देखेंगे कि स्लाइडर जॉकी कैसी होती है और किस तरह से काम करती है। ओके, so in balanced bridge condition no current, in balanced bridge condition no current flows through the galvanometer, which galvanometer we have connected. This galvanometer will show no current. In that condition we will say this bridge is balanced, that because balancing happened, that is why this bridge is known as balanced bridge. Okay, this would be only in one condition, when VB minus VD is equal to 0, means potential difference between B to D in the diagonal in which galvanometer is connected. In the diagonal in which galvanometer is connected, in that diagonal the ends of the diagonals potential should be equal to each other. Means potential at VB is 10 volt, then potential at point D should also be 10 volt, then only they will be equal and their difference would be 0. ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं आगे इसको अप्लाई करके इससे और क्या क्या बातें हमें पता चलती हैं। Kirchhoff rule we will also use in this. So by using Kirchhoff rules, this is the circuit. You can see Wheatstone bridge made a circuit in which he has connected 4 resistors in one quadrilateral. The arms of the quadrilateral he connected one individual resistor. You can see those resistors we will mention here as P, Q, R, S. You can mention R1, R2, R3, R4, W, X, Y, Z. Whatever you wish to give the symbol, that symbol you can give. Now we will apply Kirchhoff rules for further observations. So as we will switch on this key, primary key, from the positive terminal of the cell or battery we have connected, current I comes out, and from the positive terminal to this point A, single wire, single current will go, and this is the junction. So as per the resistance P and R, this current will distribute. So I am distributing this current into 2 parts. Suppose I1 current goes through P and I2 current goes through R. I करंट यहाँ से आती है, कुछ करंट इधर चली जाती है, बाकी बची हुई करंट दूसरी ब्रांच से निकल जाती है। टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ओके, किरचॉफ रूल में हमने देखा है फर्स्ट रूल में। अब उसके बाद देखिए आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस I1 करंट फ्लोज थ्रू दिस P रेजिस्टेंस I1 एंड एट पॉइंट B अगेन वी गिव सम सेग्रीगेशन। दिस गैल्वेनोमीटर विल हैव 1 रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो काफी हाई होता है जनरली, and since this is the junction, so we can assume some current, little current flows through the galvanometer. Suppose that current is IG, current goes through the galvanometer, that is IG. Initially it will flow, then we will produce the condition we will be finding by the slider jockey. This key generally I have mentioned, we have drawn like this, but this key doesn't look like this. This key is the slider jockey. We know only the potential at point B and we search the point D over the wire, over the experiment we do. Once we get that potential at which the potential of that point and this point would be equal to each other, then only this condition produced inside the diagonal in which galvanometer is connected, that it shows 0 current. Initially it will show some current, suppose that current is IG. Okay, now if current IG is flowing through this, I1 was coming towards B, I1 the part of IG flows through galvanometer, so this part I minus IG I can mention, sorry, I1 minus
IG will flow through the Q. I1 करंट यहाँ से आई, उसमें से IG करंट इधर से जा रही है और I1 माइनस बाकी बची करंट आगे से जाएगी. ओके, इन दिस ब्रांच I2 is coming and from here IG is coming. At this junction they will combinedly move towards S. I2 and IG, I2 plus IG, and this is again the junction I1 plus IG coming from here, I2 plus IG is coming from here. They will combine here and positive IG minus IG they will cut each other and I1 plus I2 will go towards the negative end of this cell or battery you have connected. So your distribution was I and the part of I were I1 plus I2 and I1 plus I2 you are getting back. तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है. और भी कई तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड हम करेंगे बाद में, उसको कई तरह से हम करने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं. बहुत तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं. आप करंट इधर से भी भेज सकते हैं, उधर से भी भेज सकते हैं, सेग्रीगेशन कहीं भी दिखा सकते हैं. I1 इसको कर सकते हैं, I2 इसको कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं. ओके, एक बार आप सीख जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया. उसके बाद हमने डी पॉइंट भी ढूंढ लिया. बी और डी का पॉइंट हमें मिल गया, ऐसा पॉइंट जिसमें कि बी और डी का जो पोटेंशियल है वो सेम है. जैसे ये पॉइंट हमें मिलता है कंडीशन फुलफिल हो जाती है, जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाता है और बन जाता है बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन. सो हम लिखेंगे इन बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशंस. जब बैलेंस ब्रिज कंडीशंस हमें मिलेंगी तो गैल्वेनोमीटर से होके जाने वाली जो करंट है वो हो जाएगी ज़ीरो. अगर वो करंट ज़ीरो हो जाएगी IG इज इक्वल टू ज़ीरो सिंस पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D. जो भी पॉइंट आपने इस डायगोनल का नाम रखा हुआ है वो दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए. उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़ीरो हो गया. ओके, अब देखिए, वी आर गोइंग टू अप्लाई किरचॉफ रूल्स फ्रॉम किरचॉफ रूल्स. किरचॉफ रूल अप्लाई करने के लिए एक तो ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया जिससे हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जंक्शन रूल की हेल्प से. अब इसमें हम देख रहे हैं हमारे कितने वेरिएबल आ गए. जो करंट हमने भेजी थी उस करंट के दो पार्ट हुए हैं बेसिकली, I1 और I2. IG तो जीरो होने वाला है बैलेंस ब्रिज कंडीशन में, तो उसका कोई मतलब नहीं है. पहले ही हमने मेंशन कर दिया कि बैलेंस ब्रिज कंडीशन बनेगी ही तब जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो ना हो, और उस केस में पोटेंशियल एट पॉइंट B पोटेंशियल एट पॉइंट D हो जाएंगे बराबर और उनका डिफरेंस हो जाएगा ज़ीरो. ओके, तो सेकेंड रूल अब हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं. सो सेकेंड रूल है लूप रूल. लूप रूल की हेल्प से हमें दो लूप सेलेक्ट करने होंगे. एक लूप हमेशा याद रखिए छोटे से छोटा लूप सर्किट में सेलेक्ट कीजिए. छोटे से छोटा लूप सेलेक्ट कीजिए. अगर आपने दो वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं I1 I2, जैसे x और y का एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था इससे प्रीवियस वीडियो में जब हमने किरचॉफ रूल्स को स्टडी किया था. अगर आपने नहीं देखा उसको जाके देख लीजिएगा ज़रूर. तो I1 I2 दो वेरिएबल हैं. आपने इस पूरे सर्किट में बहुत सारे लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं. ABDABCDB, A से स्टार्ट करके ADC ऐसे भी जा सकते हैं, ABC ऐसे घूम के भी आ सकते हैं. यहाँ भी पॉइंटिंग आप करना चाहें कर सकते हैं, इनके नाम दे दीजिए. बहुत सारे लूप पॉसिबल हो सकते हैं. आपने एक लूप लिया, इक्वेशन आई I1 I2 में. अब आपको पता है कि दो वेरिएबल हैं हमारे पास I1 I2, सो वी नीड टू डिफरेंट इक्वेशंस टू सॉल्व दोज I1 I2. तभी हमें I1 I2 की वैल्यू मिलेगी और पता चलेगा कि किस ब्रांच से कितनी करंट जा रही है. ओके, एक बात तो ये है. तो अगर आपने दो लूप लिए और दोनों लूप से सेम ही इक्वेशन आपके पास आ गई तो उसी सर्किट में आपको फिर एक तीसरी लूप लेना पड़ेगा, थर्ड लूप आपको लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको I1 I2 की एक दूसरी इक्वेशन मिल पाए. सेम एग्जैक्ट इक्वेशन आपको कोई रिजल्ट नहीं देगी, इसलिए ऐसा भी हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा. और छोटे से छोटा लूप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए. तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ABDA छोटा लूप है और इसमें मैंने ये अपना घूमने का डायरेक्शन बना लिया. एंड वी विल मूव इन दिस लूप क्लॉकवाइज. ये येलो वाला जो सर्किल है ये आपको हेल्प करेगा कि इस लूप में हम A to B to D to A जा रहे हैं. सो इन लूप ABDA
आप डी ए बी डी बी लिख सकते हैं इस लूप को, जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। ओके, कोशिश यही करें कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उसी तरह से आप उसकी नेमिंग करें जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, ए बी डी ए में चलते हैं। तो सेम डायरेक्शन करंट पॉजिटिव वी विल टेक, अपोजिट डायरेक्शन करंट वी विल टेक नेगेटिव। ओके, सो ए से स्टार्ट किया, ए टू बी में रेजिस्टेंस है P और करंट फ्लो हो रही है I1 जो कि इधर जा रही है, और हमारा मूवमेंट भी ऐसे है, यानी कि हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा I1, तो ये हो जाएगा I1 P प्लस, आगे आ जाते हैं B से D में आए तो B से D में मैथमेटिकली शो करना पड़ेगा IG इंटू RG। हम चल रहे हैं ऐसे, ये इस तरह से ऐसे घूम के आएंगे और करंट भी ऐसे जा रही है तो ये भी पॉजिटिवली ऐड हो जाएगी। IG कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस RG, वो IG 0 है, नेक्स्ट स्टेप में 0 दिखा देंगे। ओके, बहुत सी बुक में इसको दिखाते भी नहीं है क्योंकि बैलेंस ब्रिज कंडीशन में ऑलरेडी पता है कि वहाँ 0 होने वाला है गैल्वेनोमीटर में। ओके, फिर हम A से B गए, B से D आ गए, D से A आने में हम चल रहे हैं ऐसे और करंट आ रही है हमारे अपोजिट, सो ये हो जाएगी -10 माइनस I2 और कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है R से पास हो रही है, और इस लूप के अंदर कोई भी सेल कनेक्टेड नहीं है तो कितना ही रहेगा, इज इक्वल टू 0, है ना। नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द लूप इज 0 एज पर द लूप रूल। ओके, अगर आपने लूप रूल कैसे अप्लाई करना है, जंक्शन रूल कैसे अप्लाई करना है अभी तक नहीं सीखा है तो इससे पहले जाके किरचॉफ रूल्स की एक वीडियो जो इससे पहले बनी हुई है उसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। उसमें बताया गया है कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी लूप में। ओके, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ I1P, ये हो जाएगा 0 क्योंकि IG की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस माइनस 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 I2R इज इक्वल टू 0, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा I1P इज इक्वल टू I2R। ये इक्वेशन नंबर 1 बना के यहाँ पे आपको छोड़ देना है, फिर कोई दूसरा लूप ढूंढना है। ये एक इक्वेशन है I1 I2 में, हमें दूसरी चाहिए। ओके, तो दूसरा लूप इसके सामने वाला ले लेते हैं, ये रहा, ये हमारी डायरेक्शन हमने सेलेक्ट कर ली, यहाँ भी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एक सर्किट के अंदर जितने भी लूप्स आप ले रहे हैं उन लूप्स में अलग अलग लूप की अलग अलग प्रॉपर्टी है। किसी भी लूप में आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। ये नहीं कि आप ऐसा मत करिएगा कि आपने एक लूप सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद A से B गए, B से D गए, फिर वापस आ रहे हैं, ये नहीं करना। एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट करना है लूप को, या तो क्लॉकवाइज चलिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलिए। सारे लूप्स में एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, क्लॉकवाइज चल सकते हैं, जिस लूप में जैसे चलना चाहें कंप्लीट करने के लिए उस लूप को प्रॉपर्टीज लगाने के लिए आप चल सकते हैं। ओके, अब देखिए सेकेंड लूप में लेने वाला हूँ। सेकेंड लूप लिया मैंने BCDB, इन लूप BCDB, B से C, C से D, D से B चल रहे हैं। ओके, इस केस में देखिए B से स्टार्ट किया, ऐसे जाएंगे B से C हम, ये हमारा डायरेक्शन, ये बना हुआ सर्कल, और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि पॉजिटिवली ये करंट आएगी I1 माइनस IG, किस रेजिस्टेंस से होके जा रही है, Q से, फिर प्लस C से D आ जाइए। C से D जब आएंगे करंट का डायरेक्शन ऐसे है और हम आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये करंट हो जाएगी माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन यहाँ लगा देते हैं और करंट को लिखते हैं I2 प्लस IG, फिर प्लस D से B जाना है हमें, यहाँ भी हम ऐसे जा रहे हैं और करंट IG हमारी तरफ आ रही है, तो माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG, और इस लूप के अंदर भी कोई भी सेल नहीं है इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं होगी, इज इक्वल टू 0। नेट पोटेंशियल डिफरेंस इस लूप का इस तरह से 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। IG की वैल्यू क्योंकि हो गई है 0 तो I1Q रह जाएगा यहाँ, फिर ये वाले पार्ट में प्लस माइनस माइनस I2, अच्छा इसके साथ जो रेजिस्टेंस था I2 प्लस IG में ये S से पास हो रही है, S छूट गया यहाँ मेंशन कर लीजिएगा S, उसके बाद IG हो गया 0 तो प्लस माइनस माइनस I2S, और यहाँ पर IG 0 होने से पूरा टर्म 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख दीजिए।
तो ये हो जाएगा I1Q इज इक्वल टू I2S। ये इक्वेशन नंबर आपको मिली 2। अब फर्स्ट एंड 2 देख लीजिए, दोनों अलग अलग दो रिलेशन है, एक I1 I2 में एक इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है। इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वो रिजल्ट क्या है देखिए, 1 और 2 में हमने किया 1/2। 1/2 अगर करते हैं तो होगा I1P डिवाइडेड बाई I1Q। लेफ्ट हैंड साइड के रेशियो हो जाएंगे, राइट हैंड साइड के रेशियो हो जाएंगे, I2R बाई I2S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल। दिस इज द वेरी फेमस रिजल्ट, P/Q इज इक्वल टू R बाई S। जब भी आपको बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन मिले, अगर ये बताया गया है कि वो ब्रिज जो एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में है, उसमें 4 रेजिस्टर हैं और उन रेजिस्टर्स के रेशियो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हैं, तो आप समझ जाइए कि उसके एक डायगोनल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। उस डायगोनल में आप गैल्वेनोमीटर अगर लगाएंगे तो वहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। और एक बात देखिए, जो आपने देखा था अभी, इस तरह से 4 रेजिस्टर्स लगे हैं, P इधर है कि ये Q, ये R, ये S। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और इस डायगोनल में गैल्वेनोमीटर है। और ये वाला जो डायगोनल था, नाम भी दे दीजिए इनके, A B C D। एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर और की है, जॉकी, ओके। और दूसरे डायगोनल में, क्योंकि ये 3D फिगर है इसलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, वायर को लंबा कर देते हैं और उस वायर को उतार के नीचे रख लेते हैं। ऐसे कनेक्शन यहीं से रहता है, और उस डायगोनल में एक सेल कनेक्टेड रहता है और एक की कनेक्टेड रहती है। की दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, स्विच दिखाएंगे तो आप इस तरह से दिखा देंगे, ओके। तो कंडीशन आपको देखनी है, जब बैलेंस हो जाएगा, इस यहाँ से डायगोनल से होके जाने वाली करंट हो जाएगी 0, क्योंकि पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट D दोनों हो गए बराबर, डिफरेंस हो गया 0 इनका। तो ये कंडीशन अगर आपको मिले तो आप ये वाली कंडीशन उसमें ऑलरेडी एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर करंट यहाँ पे हो गई 0, तो जो करंट यहाँ से फ्लो हुई थी I1 और जो यहाँ से गई थी I2, ये वाली I1 ही यहाँ से IG जो पार्ट हमने दिया वो 0 हो गया, तो पूरा का पूरा I1 यहाँ से आगे बढ़ जाएगा इस जंक्शन से। भाई 10 एम्पियर करंट यहाँ से आई, 10 में से यहाँ 0 चली गई तो यहाँ कितनी जाएगी, 10 एम्पियर। ऐसे ही यहाँ से 5 एम्पियर आई, 5 एम्पियर में से यहाँ कोई नहीं गई, 0 गई, तो कितनी चली जाएगी यहाँ पर 5 एम्पियर। यानी कि जो करंट यहाँ से चलेगी वो करंट आगे बढ़ जाएगी, जो करंट यहाँ से चलेगी वो करंट यहाँ आ जाएगी, यहाँ आके ऐड होके फिर अपने रास्ते पे वापस चली जाएगी। ये होगा, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, एक इस तरह से बन गया और एक ये, उनके बीच में ये ब्रिज बन गया। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। और कैसा ब्रिज, बैलेंस्ड। क्यों है बैलेंस, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल पॉइंट्स का कैसा है, सेम, इसलिए बैलेंस्ड ब्रिज गिवन बाय व्हीटस्टोन, इसलिए इसका नाम है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। BWSB, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए और आगे क्या हो सकता है। एक तो ये हो गया, इसका मतलब ये है कि P और Q सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, S और R सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, और ये इन दोनों का रेजिस्टेंस और इन दोनों का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, ये भी निकाल सकते हैं। PQ/RS से देखिए इसमें क्या पता चल रहा है, P/Q/R इज इक्वल टू R/S। तो P तो यहाँ लिखा है, Q ये रहा और R ये है, S ये है। तो P/Q यानी कि ये रिलेशन रेशियो के साथ में ये रेशियो इक्वल होगा, उल्टा नहीं करिएगा। कई तरह से लिख सकते हैं इसे, P/Q इज इक्वल टू R/S। आप इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, इधर उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा P/R इज इक्वल टू Q/S। ये भी एक रिजल्ट बन जाएगा। यानी कि अगर आपने रेशियो P से R का लिया है, आमने सामने कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज आर इक्वल, तो P के सामने वाला जो है Q और S का रेशियो लेना, उल्टा नहीं करना कि P/R इज इक्वल टू S/Q, नहीं, आमने सामने। अगर आपने इन दोनों का लिया है PQ रेशियो, तो इसके सामने यहाँ चेक करिए कि क्या ये दोनों बराबर हैं। जब आप इन दोनों को ऐसा डायग्राम जब भी आप देखें, सबसे पहले आपको ब्रिजिंग चेक कर लेनी है कि बैलेंस तो नहीं है, उससे आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप इस बात को और समझेंगे कि ये बैलेंस ब्रिज स्टोन कंडीशन होने से कितना आसान हो जाता है को प्रॉब्लम। तो P/Q अगर आप ले रहे हैं तो R/S लेना है, P/R ले रहे हैं तो Q/S लेना है, R/P ले रहे हैं, R से P भी ले सकते हैं, R/P तो S/Q लेना है, और
Q बाई पी कर रहे हैं तो S बाई आर करना है, उल्टा नहीं करना कि Q बाई पी किया और इधर R बाई S कर दिया, उल्टा ये नहीं। कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज आर इक्वल। अब इसमें 4 वेरिएबल हैं, 4 रेजिस्टेंस हैं, 3 आपको पता होंगे, चौथा आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो है S। तो S की कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आगे की बात है, जब हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। किरचॉफ रूल्स को एक बार कैसे अप्लाई करना है पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसे स्टडी करिएगा और फिर हम आगे इनकी एप्लीकेशंस मीटर ब्रिज पे चलेंगे, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। यू कीप प्रैक्टिसिंग, तब तक के लिए बाय बाय।